Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss about cognitive factors, how they influence a second language learner. In previous lecture, we somehow all discussed the affective factors, or after that, we discuss contrastive analysis as well. But today we will discuss about, or we will take a look over the recent lectures, and after that, we will discuss the cognitive factors. First of all, when learning a second language, some students progress rapidly while others struggles and make slower progress. और हम सिंपली कह सकते हैं कि कुछ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को याद करते वक्त या इसको हासिल करते वक्त बहुत से तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि दे लर्न मोर क्विकली एंड फास्टली देन द अदर्स, और कुछ लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं लैंग्वेज लर्निंग करने के मामले में बनिस्बत दूसरे बच्चों के। हमारा जो हमारा बेसिक पर्पस है कि टुडे वी विल डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल help and that will influence the second language acquisition or second language learning. First of all, what is an individual factors? As we discussed in our previous lectures or previous lectures, that what are the individual factors? Social psychologists have argued that individual difference between learner is the most common factor that affect development of language. Individuals की capabilities होती है, ये vary करती हैं हर person के ऊपर. ये last हमने discuss किया था. Even when following a common developmental route, the degree of success learner achieved by each learner is always different from each other. हर पर्सन की कैपेबिलिटीज जो होती हैं दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ होती हैं. कुछ बड़े क्विक होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं, दूसरे जब बड़े डल होते हैं, लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं. लिहाजा एंड दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन ईच इंडिविजुअल, और यही वजह है कि हर बंदा डिफरेंट होता है. सम पीपल्स की जो आप कह लें कि लर्निंग कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, लेकिन कुछ की बहुत आप कह लें कि डल होती हैं, फेक होती हैं, जिन्हें हम रिलायबल नहीं समझ सकते. जो लैंग्वेज लर्नर की फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो अगेन इसके अंदर वही बात दोबारा शो हो रही है कि यहाँ पर देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस समवन सक्सेस एट मास्टरिंग अ न्यू लैंग्वेज. इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्नर learning of a second language are those which stem from the learner's own mind, और ये इंसान के जहन से वाबस्ता हो सकते हैं. और some students learn a new language more quickly and easily than others. Clearly some languages learner are successful by sheer determination and hard work and persistence. कुछ लोगों के अंदर hard working होता है, determination होता है, उनकी persistency होती है, that may help him or her to learn a good language. But इनके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमें देखना क्या पड़ता है. However, there are other factors that influence success that are mostly beyond the control of the learner. These factors can be broadly categorized as internal and external factors. It is the interplay between these two factors that determines the speed and facility with which the new language is learned. दो तरह के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल और एक्सटर्नल की बात क्या करते हैं हम. अफेक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं ये आप कह लें कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और कॉग्निटिव आप कह लें कि ये भी फैक्टर्स होते हैं. कहते हैं जी गार्सनर एंड मैसेनर have decided or divided these internal factors into two groups, affective factors and cognitive factors, and we have discussed affective factors in our previous lectures, जिसमें से हमारे पास most common जो था learners aptitude था, anxiety in language learning थी, personality थी, social and cultural attitude था, such as gender roles है, community views है, toward language learning है, फिर individual attitude था toward second language, फिर individual motivation था toward learning a second language, or willingness to communicate. Yeah, these are the affective factors that we have discussed in our previous lectures. But in our today lecture, we will discuss the major part of cognitive factors. In cognitive factors, we will discuss intelligence, language aptitude, or language learning strategies. These factors are related to your mind or cognitions, where we have to be very much clarify about these things. If we are not clearly clear about these things, so definitely we will have to face some problems or some musics in learning or while learning a second language acquisition or second language learning. What is an intelligence? Intelligence refer to mental abilities that are measured by an IQ test. और ये आपकी वो कैपेबिलिटीज होती हैं जो आपके IQ टेस्ट से, आपकी इंटेलिजेंस और क्विकनेस से
इंटेलिजेंसी क्विकनेस से हम जांच पाते हैं कि हाउ मच ही और शी इज इंटेलिजेंट, ये कितना ज़हीन है। और इंटेलिजेंसी में बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग दैट इन्वॉल्व लैंग्वेज एनालिसिस एंड रूल लर्निंग्स। और ये तो बड़ी मैटर करती है। और ये इंटेलिजेंसी जब हम किसी रूल्स के एनालिसिस की बात करते हैं, किसी लैंग्वेज के रूल्स की बात करते हैं या उस लैंग्वेज की एनालिसिस की बात करते हैं, तो तब रूल्स पढ़ लें या लैंग्वेज का एनालिसिस पढ़ लें तो इंटेलिजेंस ही बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर आपका माइंड ही शार्प नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, तो हाउ कैन यू लर्न और हाउ कैन यू अंडरस्टैंड और हाउ कैन यू इमेजिन द रूल्स एंड रेगुलेशन of that language that is being proceeded by you people. On the other hand, it may play a less important role in language learning that factors more on communication and interactions. कहते हैं जी लर्निंग के साथ हो सकता है, लेकिन ये साथ साथ कोई कम रोल अदा कर सकता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर या इंटरेक्शन के ऊपर। लेकिन ये कॉमन चीज है, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट स्टूडेंट्स विद गुड इंटेलिजेंस आर एबल टू डू वेल इन सेकंड लैंग्वेज लर्नर और लर्निंग एट लीस्ट इन फॉर्मल क्लासरूम। कम से कम जिनकी इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, जिनकी माइंड सेट अच्छे होते हैं, वो क्लासरूम में तो एक फॉर्मल अदायगी करते हैं, जो फॉर्मल क्लासरूम होते हैं। इट मीन्स आपके लिए जहाँ पर रूल्स, फॉर्मल के बारे में भी पढ़ा था हमने, इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था कि जो फॉर्मल लर्निंग होती है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है, हमें बाउंड्रीज के अंदर बड़े ऑफिशियल रहकर हम चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप, फिर क्या कहता है जी, कहते हैं जी इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इंटेलिजेंस इज कम्प्लेक्स इंडिविजुअल ट्रेट एंड अ पर्सन मे हैव मेनी काइंड्स ऑफ एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स। और एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज वेरीज पर्सन टू पर्सन, ये हर बंदे की अपनी होती हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो जाहिर है वो बहुत इंटेलिजेंट है और जो जो इसी कैपेबिलिटी की सलाहियत रखती है वो शहनाज है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते। क्यों? शहनाज की फीचर्स अपनी है, उसकी इंटेलिजेंसी अपनी है, जाहिर की अपनी है, फरमान की अपनी है, अली की अपनी है, एहसन की अपनी है। मतलब एवरी पर्सन is capable enough or is आप कह लें कि is capable enough to understand where he or she is। वो इतना बेहतर जानता है कि उसकी अपनी ज़ाती पोजीशन क्या है। एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पर्सन। क्लास में हर बच्चा जानता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। हम सोच रहे होते हैं यार देखो वो बच्चा कितना ज़हीन है, वो कितना ज़हीन है, वो कितना ज़हीन है। इवन वी नो वेरी बेटर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सेल्फ। हम अपनी परफॉर्मेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जांच रहे होते हैं। और अगर हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो लिहाजा इंटेलिजेंसी जो है ये वेरी करती है हर पर्सन के ऊपर, हर पर्सन की इंटेलिजेंसी अपनी होती है। फिर एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। एप्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास? एप्टीट्यूड रेफर टू पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट। ये वो पोटेंशियल्स हैं, ये वो स्ट्रगल्स हैं, ये वो मोटिवेशंस हैं, ये वो आपकी काबिशें हैं, ये आपकी कोशिशें हैं जिन्हें कोई एक लर्नर एक लैंग्वेज लर्निंग के लिए लगाता है। एक पर्सन है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ही डजंट वांट टू लर्न, वो चाहता ही नहीं सर लर्न करना, तो वो जो एप्टीट्यूड या लैंग्वेज लर्निंग का होगा वो उसका जीरो होगा। और एक पर्सन है जो लेस इंटेलिजेंट है लेकिन उसका एप्टीट्यूड लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ही विल बी बेटर, तो वो उससे बेहतर होगा। इंटेलिजेंसी एक और मैटर है और एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज लर्निंग एक दूसरा मैटर है। अगर आप के पास एप्टीट्यूड ही नहीं है, मतलब यू डजंट और यू डू नॉट वांट टू लर्न और ही डजंट वांट टू लर्न, जब वो पढ़ना नहीं चाहती है, तुम पढ़ना नहीं चाहते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी अम्मी की क्लास के ले लें, सभी कैपेबल इनफ है लेकिन कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। जब वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे तो उनका लैंग्वेज की तरफ जो ध्यान है वो बिल्कुल भी नहीं है बनिस्बत उन बच्चों के जो ले रहे हैं क्लास को। लिहाजा लैंग्वेज एप्टीट्यूड इज अ वेरी effective tool for second language learning. An aptitude test is designed to make a prediction about an individual future achievements। और ये हम कह सकते हैं, सिंपली सादा से बयान कर सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को बारे में टेस्ट करने के लिए या किसी भी लैंग्वेज की सलाहियत किसी एक पर्सन के लिहाज से जानने के लिए हम एप्टीट्यूड जो टेस्ट लेते हैं वो बता सकता है इसके पास कितनी चीजें हैं, इसकी रजामंदी कितनी है, इसके पास अवेयरनेस कितनी है, इसके पास उस चीज का नॉलेज कितना है और वो कितना इसके अंदर इसे कैपेबल कर बनाना चाहता है। अगर तो वो पॉजिटिव लेगा इसे तो डेफिनेटली वो इस लायक होगा। एप्टीट्यूड है क्या हमारे पास? एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज लर्निंग यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। 4 चीजें इसके अंदर मुलविस होती हैं। पहला ये होता है कि उसे आइडेंटिफाई करना है कि उसकी मेमोराइज न्यूज साउंड साउंड कौन से आ रहे हैं, मतलब कौन सी नई चीजें हैं जो उसे याद करनी है। द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मेमोराइज न्यू साउंड, पहला इसका रूल है। अगर वो एप्टीट्यूड उसका अच्छा है तो उसे पता होना चाहिए कि नई चीज कौन सी है और उसे
देखना कैसे है और उसे याद कैसे करना है। सेकंड रूल है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और ही मस्ट बी केपेबल इनफ टू सी which part of function or which function of the parts of speech is being played by these word। इन लफ्जों से कौन से फंक्शन अदा किए जा रहे हैं। सपोज हम जुमले की बात करें तो यहाँ पर नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। he must be or she must be capable enough to see the position or the function or the underlying function of any particular word। और अगर वैसा है, उसकी एबिलिटी है, तो डेफिनेटली उसका एप्टीट्यूड लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड पे कहता है जी एबिलिटी टू फिगर आउट ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम लैंग्वेज सैंपल्स, और उसे ये भी सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो उन ग्रामेटिकल रूल्स को उस लैंग्वेज के अंदर फाइंड आउट कर सके। ये यहाँ पर रूल है, अगर जुमला बोला जाता है कि ही इज बिगर देन आई मैंने लिख दिया है कैपिटल में, या मैं लिख दूं ही इज बिगर देन मी, तो मी मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्टिव हालत है, देन एक कंजक्शन है, तो वो बंदा इस लायक होना चाहिए कि बता सके कि इसके अंदर एरर क्या है। ही इज बिगर देन मी, देन एक कंजक्शन है, लैटिन के रूल के मुताबिक देन एक कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत आती है, लिहाजा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मी लिखी गई है। अगर हम देन आई कर देंगे तो जुमला ठीक हो जाएगा। इस मीन ये भी एक एप्टीट्यूड है, रूल्स और ग्रामर्स को जानना भी एक उस इंडिविजुअल पर्सन की सलाहियत बरकरार रखती है। फिर कहता है जी द एबिलिटी टू मेमोराइज न्यू वर्ड्स, और उसके पास इतनी सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो नई मेमोरी को याद भी कर सके, नए वर्ड्स को अपने जहन में रख सकते हैं। पहला ये है कि उसे लफ्जों को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा ये है कि उसके फंक्शन को उसे समझना है, तीसरा ये है कि उसे उस रूल्स को ग्रामेटिकल को भी फिगर आउट करना है, और चौथा ये है कि उसे नए लफ्ज हासिल करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। कहते हैं जी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्नर आर नॉट नेसेसरली स्ट्रांग इन ऑल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड। ये चार जो बयान किए गए हैं, कहते हैं लैंग्वेज लर्नर के लिए जरूरी नहीं है कि चारों के अंदर ही चारों के चारे पाए जाए हों, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए। Some learners may have a strong memory but only a average ability to figure out grammatical rules। उसे रट्टा लगाने की या लफ्ज को याद करने की बड़ी सलाहियत होती है, लेकिन वो पर्टिकुलरली रूल्स को फाइंड आउट नहीं कर पाता कि ये इसके अंदर रूल्स क्या है। अगर किसी से बात पूछी जाती है, वो कहते हैं सर इसका आंसर ये है, तो अगर वाई पूछा जाए क्यों ऐसा क्यों है, तो कहते हैं सर ये नहीं पता ये कैसे है, लेकिन आंसर यही है इसका। मतलब उसके पास लॉजिक्स और रीजंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता उसे, लेकिन वो काम कर लेता है। लर्नर्स डू नॉट ऑल शेयर द सेम एप्टीट्यूड, और डेफिनेटली जैसे कि इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज होती है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी होती है, इसी तरह ही इंडिविजुअल एप्टीट्यूड होता है दैट वेरीज ओवर पर्सन टू पर्सन। आपका एप्टीट्यूड और है, मेरा एप्टीट्यूड और है, और दूसरे का एप्टीट्यूड और है। लिहाजा हमारे पास थर्ड पॉइंट था, पहला हमारे पास इसमें आप कह लें कि इंटेलिजेंसी थी, दूसरा हमारे पास लैंग्वेज एप्टीट्यूड था, थर्ड हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज थी। अब स्ट्रेटजीज आर द इम्प्लीकेशन, ये वो हिंट हैं, वो तैयारियां हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट वी अप्लाई टू लर्निंग, जो हम लर्निंग के प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट हैज डिफरेंट लेवल्स, इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। दोज हु आर सक्सेसफुल इन सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैव यूजफुल स्ट्रेटजीज, उनके पास बड़ी ही फायदेमंद स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, रिहर्सल है, ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप प्लान नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, रिहर्सल नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो हाउ कैन यू अचीव योर टारगेट गोल, तो आप अपने टारगेट गोल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी फॉर अ गोल टू हैव अ प्लान, टू हैव अ मॉनिटर, टू हैव अ रिहर्सल, टू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, और ये चारों की चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है। मजीद भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि वो कहता है learners who are highly motivated to learn a language will use a variety sorry class will use a variety of strategies। ये मुख्तलिफ strategies इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग को इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक्स और हिंट इस्तेमाल करते हैं। The learners preferences or preference for learning, whether due to their learning styles or their beliefs about how language are learned, will influence the kind of strategies or implications that they choose to learn new materials। Definitely ये जो rules बनाए जाते हैं, ये जो प्लान किए जाते हैं, ये किसी न किसी तरह से उसकी लैंग्वेज की स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये कैसी चीज़ें हासिल की जा रही हैं। द मोर प्रोफिशिएंट लर्नर्स एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द लेस प्रोफिशिएंट। जो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं कोई प्लानिंग करने में, उनकी सलाहियत कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती उन लोगों के जो जिनके पास प्रोफिशिएंसी नहीं होती, कोई ट्रिक्स नहीं होते, जो रूल अप्लाई नहीं करते, जो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करते।
अब पहला पॉइंट उसमें था इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। क्या होता है ये? टीचर कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग अप्रोचेज एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ईच और आप कह लें कि ईच लर्नर्स इंटेलिजेंस एंड स्टीम्ड एप्टीट्यूड टू अकोमोडेट देयर डिफरेंस एंड टू क्रिएट अ बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट। और यू नो वेरी वेल कि एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ इंटेलिजेंसी और मुख्तलिफ एप्टीट्यूड के लोग बैठे होते हैं। टीचर्स के लिए सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है और टीचर सब के लिए सबसे बड़ा टीचर का चैलेंज भी यही होता है कि he has to clarify और he has to pinch out the things in the mind of the readers or in the mind of the learners। उसे एक एक बच्चे के जहन में चीजें बिठानी होती हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अगर वो इन इंटेलिजेंसी को, इन एप्टीट्यूड को, इन स्ट्रेटजीज को, इन स्किल्स को, इन आप कह लें कि इन ट्रिक्स को वो नहीं जानता, तो डेफिनेटली ही और शी विल नॉट केपेबल इनफ टू टीच his or her selected lesson। तो वो कभी भी अपना बताया हुआ लेसन नहीं पढ़ा सकता। फिर क्या कहता है जी? टीचर कैन यूज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंसेस or for learning to help learners to learn better learning strategies and thus develop greater flexibility in their second language learner। और टीचर अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है, एक अच्छा गाइड कर देता है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो लर्निंग के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज हैव बीन फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन लर्निंग। और अगर आपका इंटेलिजेंस बेहतर है, एप्टीट्यूड बेहतर है, लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रमोटर हैं, एक आप अच्छे लैंग्वेज एम्बेलिश करने वाले हैं। It remains difficult to make precise prediction about how a specific individual characteristics influence success as a language learner because research results have not been entirely satisfactory, perhaps because of lack of clearly methods for measuring individual characteristics or perhaps because of the complex interaction of those characteristics। Simply हम कह सकते हैं कि हम किसी भी individual person की सलाहियतों को किसी पैरामीटर में नहीं माप सकते। हम जस्ट टेस्ट ले सकते हैं और वो कहते हैं, रिसर्च कहती है ये कि टेस्ट अच्छे नहीं है। समटाइम्स बच्चों की टेस्ट से हटके होते हैं, जिस टेस्ट के ऊपर जिस बंदे का टेस्ट बन जाता है उससे ज़्यादा परफॉर्म कर देता है। समटाइम कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई किसी चीज़ में बहुत माहिर होता है जो उसमें दूसरा माहिर नहीं होता। अगर मुझे मैथ बहुत अच्छा आता है तो किसी को फिजिक्स बहुत अच्छा आता है, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छा आता है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है। इट वेरीज करता है। तो लिहाजा ये भी इंडिविजुअल मेयरिंग जो है ये भी हम नहीं कर सकते। लिहाजा टुडे वी डिस्कस्ड major aspects of cognitive factors, and we have three factors. First one in intelligence, second one language aptitude, and third one learning strategies. They are helpful for language learning or learning a second language acquisition. So that's all from my side. Any question? You can make a question or you can ask. कोई है सवाल तो आप इसमें पूछ सकते हैं बच्चों।